Concentrate on the whole project, every part of the film. ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जिस पे आपको हार्प करना है. So it's basically, I think filmmaking is about storytelling. So you have to concentrate on storytelling and everything else falls into place. I think इनकी जो clarity है, that is what makes him an amazing director, amazing producer, amazing actor. Ladies and gentlemen, Ajay Devgan, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Of course, on that note, would like to invite on stage the leading lady here, ladies and gentlemen. She is gorgeous. She is, I'll fall short of adjectives. All I can say is give it up for the very gorgeous Tabu, ladies and gentlemen. Your trademark smile, ये इतनी लोगों की nervousness दूर कर देती है, एक ना माहौल को एकदम शांत कर देती है. What do I have to say? 9 फिल्म साथ में with Ajay sir. जी. इससे पहले डायरेक्ट नहीं किया आपको इन्होंने कभी? नहीं, कभी नहीं. है ना? And he was a different human being. I wanted to know that only. Please give us some masala here. He was not the Ajay Devgan that I have known for so many years. ये कोई और ही होते हैं जब भी डायरेक्टर होते हैं. ये किसी से बात नहीं करते. ये हंसते नहीं है. ना ये मुस्कुराते हैं. वैसे भी कम बात करते हैं और कम हंसते हैं. पर जब वो डायरेक्टर होते हैं तो आप इनके पास जाइए ही मत. बिल्कुल. ये कभी-कभी भूल भी जाते थे कि शॉट में मुझे बताएं कि क्या करना है. वो भी भूल जाते हैं. He's like क्या करना है? हाँ. अब बैठ जाओ. जंप मारो ट्रक पे से, फिर ऐसे किक मारो, फिर जंप करो, फिर ये करो, फिर ऐसे पंच करो, फिर गिर जाओ. बस सिंपल. That's his instruction for my action. मैं बोलती हूँ मैं अजय देवगन नहीं हूँ सर. But he's an amazing director and he's very clear about what he wants and ये क्योंकि खुद एक्टर है तो ये एक्टर के पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट हर चीज़ को देखते हैं और एक्टर को बहुत संभाल के रखते हैं अपनी फिल्मों में. Wow, amazing, amazing. Ladies and gentlemen, जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब आई थिंक कोई मेन स्ट्रीम एक्टर तब उसे आर्ट सिनेमा कहा जाता था. कोई उन किस्म की फिल्में नहीं करता. एक तो हमने भी साथ में की थी तक्षक, तो गोविंद जी हो गए, भट्ट साहब हो गए, रामू हो गया, ऐसे प्रकाश जी हो गए, ऋतुपर्ण घोष थे, मणि रत्नम. तो कमर्शियल भी बहुत सीखा और उसके साथ एक आर्ट सिनेमा में भी सीखा कि ऑनेस्टी और रियलिटी भी कैसे रखनी है. तो आज जब उन चीज़ों का मर्ज हुआ है कि आज लोगों को रियलिटी भी चाहिए और उसको बड़े स्केल पे उस ड्रामा में भी दिखाना है और वो भी चाहिए, तो उन दोनों का जो मिक्स हुआ वो कहीं ना कहीं से आप रोज हर नए नए डायरेक्टर के साथ, कुछ ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा क्या नहीं करना. हाँ. तो आप सीखते ही हैं. तो ऐसे बहुत सारे नाम है. हर आदमी का अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है. आई मीन रोहित से ज्यादा हार्डवर्क मैंने किसी का नहीं देखा करते. तो ऐसे इतने सारे नाम है कि मैं एक दो नाम ले नहीं सकता. Your first film in IMAX, if I'm not wrong. RRR was actually. But Yeah, I it's the think full it's. fledged- I think it's. Yeah. the So first film. could you just I would say let us- second film in 3D and first film in IMAX. So could you just let us know how that happened and what was the whole thing behind going for an IMAX? In fact, we had planned 3D. We had not really thought of IMAX. And a couple of months back, we by chance met. There were some people visiting from IMAX Hollywood, and they came up and they said, "Why don't you do this?" And it was an idea, and then we started sharing it, and then things fell into place, and we thought we should definitely go into it. And the film is an IMAX experience. It's a large-scale film, so that's how we went ahead. Franchise, and when you see the film, there's a surprise element at the end of the film, which you realize will move into a part 2 or a franchise. And Bhushan sir, 2020 was Tanaji, 22 was Drishyam, and now 23 is Bhola. How do you view this association? They are like 2020 and 22 were the biggest hits of the year. So now how do you view this association and expectations from Bhola at the box office? वापस रिपीट होएगी वही चीज़ जो पहले हुई बॉक्स ऑफिस में दृश्यम से और तानाजी से. एंड दिस इज लुकिंग आपने देखा ये फिल्मों से भी ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो आई एम श्योर इट विल वर्क.
Ajay sir, hello. Fennel here. So I think this is your first film in IMAX, if I'm not wrong. Triple R was actually, but Yeah, this is the full-fledged. I think it's Yeah. the So first film. could you just, I would say second film in 3D and first film in IMAX. so could you just let us know how that happened and what was the whole thing behind going for an IMAX? In fact, we had planned 3D. We had not really thought of IMAX. And a couple of months back, we by chance met, there were some people visiting from IMAX Hollywood, and they came up and they said, why don't you do this? And it was an idea, and then we started sharing it. And then things fell into place, and we thought we should definitely go into it. And the film is an IMAX experience. It's a large-scale film. So that's how we went ahead. सवाल आपसे था, कृष्णा जी ने बोला अंग्रेजी में बोला इसलिए आप जवाब दें। निश्चित रूप से ये इस फिल्म में किसी टिपिकल क्लीशेज का इस्तेमाल संभवतः नहीं हुआ है। हर कोई एक चरित्र है। वो चरित्र अगर गलत काम कर रहा है तो आप उसे विलन नहीं कह सकते हो। उसका चरित्र है वो कि वो इस तरह का है। वैसे ही मिश्रा जी हैं, वैसे ही चंदन जी हैं, सब लोग वैसे ही, दीपक जी हैं, सब लोग वैसे ही हैं। तो ये मूलतः मुझे ऐसा, जितने दिन मैंने शूटिंग की, मुझे ऐसा लगा कि हर कोई अपने चरित्र को पकड़ के रखे हुए हैं कि मुझे यही करना है, इससे अलग भटकना नहीं है। और वो सारे क्लीशेज कि विलेन ऐसा होता है या कॉमेडी ऐसी होती है, इससे हम सब लोग बचे हैं। सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब दृश्यम भी रिलीज हुई और जब सुपर हिट हो गई, तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और 3-4 फिल्में हमारी इंडस्ट्री में चाहिए, सुपर हिट होना लगातार, ताकि एक जो पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से मजा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है, एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू। सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब दृश्यम भी रिलीज हुई और जब सुपर हिट हो गई, तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और 3-4 फिल्में हमारी इंडस्ट्री में चाहिए, सुपर हिट होना लगातार, ताकि एक जो पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से मजा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है, एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। थैंक यू। कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते, तो इतने भोले क्यों हैं आप? इतना ऐसा क्या शांति से फिल्में करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, फिर दूसरी फिल्मों को अनाउंसमेंट करते हैं, वो हिट हो जाती है। आई थिंक काम तो शांति से ही करना चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग करके और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आई थिंक कोई लंबा नहीं चलता है। थोड़ी देर शायद थोड़ा चल जाए, बट चलता आदमी सब काम से है। और अगर आपका काम ठीक हो तो फिर आपको खुद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा है या बुरा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए। और हमारी अपनी लाइफ में इतना सारा काम है, इतनी सारी तकलीफें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरों की लाइफ में घुस के उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, आई थिंक बेकार है, बहुत बेकार चीज़। I can't tell you It that. depends now what bhola means. But what is it like working with him as a director? That's the first time. It is a fantastic experience for anybody involved in the film where he is directing, because like sir was saying, he knows the direction. He knows exactly what he wants, and there is no nonsense around it. There is no frill. There is no extra anything that you are supposed to do or that he shoots. So I think, and the best thing about working with him as a director is that he is so technically sound. He has so much understanding, knowledge, experience, and a skill for being technically competent and being clear, that he knows exactly what's to be done, and he knows what is unnecessary. That's
very, very big aspect and quality of being a filmmaker or any professional, where you do away with the unnecessary stuff so that everybody's energy is only concentrated on stuff that is actually required. So he will not overshoot, he will not make you overdo things. So, you know, Did he over-pamper you? Over-pamper me? He didn't even smile at me. in She's the whole always film. pampered. She's always pampered. हेलो अजय सर, दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी। चरित्र अलग रहा है कैरेक्टर्स का, इसलिए वो सब अलग लगते हैं लकीली, और इसमें तो कुछ अलग ही है, यू नो. सो आई एम रियली हैप्पी के इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर आई हैव बीन एबल टू प्ले डिफरेंट पीपल. अजय